Good morning, students. So, today we will start with a new topic that is poultry farming. What happens in poultry farming? The definition is given on the first line. Rearing of eggs and meat yielding chicken is called poultry farming. So, rearing means chickens are kept at one place, their breeding is done, and they are taken care. After taking care, we will obtain the egg from them, egg and the meat. So all this process of keeping the chicken at one place to take and their care is taken, their hygiene is maintained. All this process is done under this poultry farming. What is the objective? The objectives behind development of new hybrid variety from a cross between Indian varieties like Asil and exotic varieties like Leghorn are as follows. Like we have seen in the previous topic, animal husbandry, two types of varieties were there. One was Indian variety and one was exotic variety. So here also in chicken, some varieties are Indian, for example Asil, and some varieties are exotic, like Leghorn. So in these both the type of varieties, Indian and exotic varieties, cross is done. Why cross is done then? Let us see. To produce good quality chickens in large numbers, to develop the ability to withstand high temperature, to use byproduct of agriculture as poultry feed. So first of all, what we saw here, cross is done. How the cross is done? One breed is taken from the Indian variety and one breed is taken from the exotic variety. And when there is a cross between Indian and exotic variety, we will get one new breed in which we can get some new qualities, good quality of chicken, and that too we can obtain in large numbers. We can develop some new species, new varieties to develop the ability to withstand the high temperature. Okay, so here in poultry farming, some chicken have the ability to lay the eggs and some are used for their meat. So from which we are getting the eggs, they are called as layers, and the chickens raised for meat, these are called as broilers. So in this picture on the right hand side, we can see the picture of broilers, chickens raised for meat. For example, Brahma, Long, Cochin, Asil. These all are the broilers, and on the left hand side you will see some chickens which are raised for their eggs. For example, Leghorn, Menorca, Ancona, Lehmann. These are the names of the layers and some are the broilers. So all this is done in the poultry farming. In the poultry farming, the rearing of eggs and meat yielding chickens is done. Now, the next topic is after the poultry farming is a sericulture, and this topic is the last topic of this chapter, Introduction to Biotechnology. So here, like in the previous topic, हमने क्या देखा? Animal husbandry देखा. In animal husbandry, कैटल्स वर केप्ट एट वन प्लेस एंड दे आर टेकन केयर. कैटल्स को हम एक जगह रखते हैं, जैसे काउज है, बफेलोज है, दे आर केप्ट एट वन प्लेस एंड दे आर गिवन सम प्रॉपर ट्रीटमेंट देयर टू गेट द मिल्क. आफ्टर दैट पोल्ट्री फार्मिंग में हमने क्या किया? चिकन्स आर केप्ट एट वन प्लेस. एक जगह पे बहुत एक प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ में वहाँ पे चिकन्स रखे होते हैं. चिकन्स सम आर लेयर्स एंड सम आर ब्रॉयलर्स, एंड हमें उनसे क्या मिलता है? एग्स एंड मीट. सो वो हुआ पोल्ट्री फार्मिंग में. एंड आफ्टर दैट सेरीकल्चर, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? वन worm is there, the name is silkworm, and from that silkworm we will obtain the silk. सो एक सिल्क वर्म है, उससे हमें सिल्क मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म. अगर हम एक जगह पे बहुत सारे सिल्क वर्म्स रखेंगे, उन्हें प्रॉपर कंडीशन देंगे और हमें उससे अगर सिल्क मिल रहा है, सो दैट विल बी द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म. सो क्या होता है सेरीकल्चर में? सेरीकल्चर, सिल्क वर्म्स आर रेयर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. फॉर एग्जाम्पल बॉम्बिक्स मोराई. बॉम्बिक्स मोराई एक
सिल्क वर्म की का एग्जाम्पल है, सिल्क वर्म है, इज अ मोस्ट कॉमनली यूज वेराइटी फॉर दिस पर्पस, जिससे हमें एक अच्छी क्वालिटी में सिल्क मिलेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। सिल्क सिल्क मॉथ की जो स्टेजेस है, देर आर 4 स्टेजेस। इन फर्स्ट स्टेज एग्स, फर्स्ट स्टेज होगी उसकी एग, सबसे पहले क्या होगा, उसे एग्स मिलेंगे, मॉथ जो है वो एग्स देगी। सो दिस विल बी द फर्स्ट। then eggs will become larva, as you can see in this picture, eggs will become larva। eggs जब फीड करेंगे कोई लीफ पर, एग्स जब हैच होंगे, एग से जब क्या आएगा, लार्वा बाहर आएगा। लार्वा जब फीड करेंगे, ओके, लीव्स पर, एक मलबरी लीव्स पर, लार्वा एग से बाहर आएगा, लार्वा जो एक स्मॉल वर्म के फॉर्म में होगा। सो नाउ दिस वर्म विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द लीव्स, ओके, दे विल फीड ऑन द लीव्स, मतलब वो लीव्स को खाएंगे। मलबरी लीव्स मोस्टली जो होता है इनका, ये फीड करते हैं मलबरी लीव्स पर। एग्स देन लार्वा, एग से बाहर आएगा लार्वा, देन लार्वा आफ्टर फीडिंग दे विल बिकम पूपा, ओके, पूपा एंड देन एडल्ट। पूपा जो होगा वो बनेगा, पूपा बनने के बाद इट विल बिकम एडल्ट। थाउजेंड्स ऑफ एग्स डिपॉजिटेड बाय फीमेल मॉथ। अब ये एग्स कौन देगा, फीमेल मॉथ। वी विल गेट द एग्स, थाउजेंड्स ऑफ एग्स फ्रॉम द फीमेल मॉथ। एंड आफ्टर दिस these eggs are incubated artificially। so हमें क्या चाहिए है, ड्यूरिंग यूजिंग सम टेक्नोलॉजी हम उसे आर्टिफिशियली क्या करेंगे, बहुत जल्दी हमें उससे लार्वा चाहिए है। सो व्हाट वी विल डू इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक मशीन होता है जिसमें एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। सो लाइक दिस उनके लिए भी कुछ उनके ग्रोथ के लिए कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। सो द टेम्परेचर इज मेंटेन इन द इंक्यूबेटर, इट इज़ लाइक अ मशीन। सो एग्स आर केप्ट देयर इन इंक्यूबेटर एंड आर्टिफिशियली दे आर incubated। So larvae hatching out of eggs are released on mulberry plants। जब उन eggs से लार्वा बाहर आएगा, सो उन्हें हम मलबरी के प्लांट्स पर रख देंगे मीन्स उन्हें उस पर फीड करवाएंगे, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मलबरी प्लांट। टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, लार्वे हैचिंग आउट ऑफ द एग्स आर रिलीज्ड ऑन द मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट का जो ट्री होगा, दे आर केप्ट ऑन दोज लीव्स। After feeding 3-4 days, larva move on the branches of mulberry plant। सो आफ्टर फीडिंग वो 3-4 डेज़ के लिए जब उस पर फीड करेंगे, कंटिन्यूसली उसके मलबरी लीव्स को खाएंगे। आफ्टर दैट लार्वे मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबरी प्लांट। द सिल्क थ्रेड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जब वो फीड करेंगे, देन आफ्टर फीडिंग द लार्वा विल ग्रो एंड एट वन पॉइंट दे विल स्टॉप फीडिंग। एक पॉइंट पर वो उस मलबरी लीव्स पर फीड करना, उसे खाना स्टॉप कर देंगे एंड दे विल सिक्रीट सम सलाइवा। ओके, द सिल्क थ्रेड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ देयर सलाइवा। कंटिन्यूसली वो सलाइवा सिक्रीट करेंगी एंड दे विल सराउंड देम सेल्फ बाय दोज थ्रेड्स। ओके, वो जब सिक्रीट करेंगे सलाइवा तो कंटिन्यूसली दे विल गेट सराउंडेड बाय वन थ्रेड। The silk thread is formed from the secretion of their salivary glands। Larvae spin this thread around themselves। वो खुद ही के अराउंड एक थ्रेड से कवर करेंगे खुद को, to form a cocoon and they will become a cocoon। as you can see in this picture, life cycle of silk moth 7.10 के नीचे वाला जो डायग्राम है, on the right hand side and left hand side small white balls like cocoons, these are the cocoons and this is a picture of cocoons। here you can see how the larva spun the thread around them and became the cocoon। okay, so larvae spin the thread around themselves to form a cocoon। the cocoon may be spherical in shape।
So now, after becoming the cocoons, 10 days before the pupa turns into an adult. अब cocoon के अंदर क्या है? pupa है. जो larva क्या हो रहा है? अपने अपने आसपास जब वो cocoon को ये सराउंड कर रहा है, थ्रेड सराउंड कर रहा है खुद के आसपास. ओके, लाइक जैसे कोई लार्वा है, वर्म लाइक है, उसने खुद को कंटिन्यूसली सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट करने के बाद खुद को एक आउटर कवरिंग बना लिया है, आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया अपने साइड में, और वो इनसाइड क्या हो रही है? ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस. ओके, कुकुन के इनसाइड क्या होती है? द पुपा ग्रोज. ओके, नाउ इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ लार्वा. अब वो लार्वा नहीं रहेगा. ओके, इट विल बिकम पुपा. एंड व्हेन इट विल बिकम पुपा इनसाइड दैट कुकुन, उसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी? इनसाइड द कुकुन. कुकुन के अंदर वो डेवलप होगा. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पुपा. ओके, सो 10 डेज बिफोर द पुपा टर्न्स इनटू एन एडल्ट. अब इस पुपा के एडल्ट बनने से पहले, अब ये पुपा क्या होगा? पुपा विल बिकम द मॉथ. जब पुपा डेवलप हो जाएगा तो अगेन वो एडल्ट मॉथ बन जाएगा, राइट? बिफोर द पुपा टर्न्स इनटू एन एडल्ट, उसके एडल्ट बनने से पहले ही ऑल द cocoons आर ट्रांसफर्ड इनटू बॉइलिंग वाटर. अब ये सारे cocoons को बॉयल किया जाता है. ऑल द cocoons आर बॉइल्ड इन अ boiling water. Due to the boiling water, the pupa dies in the cocoon. अब ये cocoon के inside ही क्या होगा? This pupa will die. Due to the boiling water, the pupa dies in the cocoon and silk fiber become loose. और क्या किया था? लार्वा ने क्या किया था? अपने सराउंड क्या किया था? वो थ्रेड सिक्रीट किया था, राइट? सलाइवा से खुद को कवर किया था. लार्वा स्पिन द थ्रेड अराउंड देमसेल्व्स. सो जो थ्रेड लाइक था, दैट थ्रेड विल बिकम लूज. वो क्या हो जाएगा? वो लूज हो जाएगा. ड्यू टू द बॉइलिंग ऑफ वाटर, द पुपा डाई इन द cocoon एंड सिल्क फाइबर्स बिकम लूज. सो वही जो लार्वा ने सिक्रीट किया था, दैट इज ओनली आर रिक्वायर्ड सिल्क. ओके, सो दीज फाइबर्स आर अनवाउंडेड, processed and reeled. So like, have you seen how we got the silk? By this process, the silk which is secreted by the larva in the developing stage. These fibers are unwound, processed and reeled. Various kind of fabric is woven from the silk thread. As you can see, so many kind of costumes are made up of silk. Silk sari is there. Silk is available in different form of costumes. Okay, so this is all about the sericulture. In the sericulture, silkworms are red. Okay, silkworms are red, and we are getting silk from the sericulture. So this is about the sericulture, and this was the last topic of our chapter, Introduction to Biotechnology. Okay, so this chapter is over now. Thank you.